मिलते हैं तो। In the previous classes, uh, as you know that we are discussing about the Gaurav Jain versus Union of India and others. और हम लोगों के सिलेबस में जो केस मेंशन किया गया है वो सबसे लेंदी अगर केस में सिलेबस है, मतलब केस है, तो एक गौरव जैन का ही केस है। अब 22-30 पेज का अगर जजमेंट है तो कम से कम 2-3 दिन तो लगता ही है। और एक बार समझ जाओगे ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग जब बन जाएगी तो जब तुम खुद को पढ़ोगे तो इसको समराइज कर लोगे। और तुम सब लोग घबराना मत। अभी जैसे एक कंप्लीट करूंगा, क्लास क्लास कंप्लीट कर लूंगा, तो जैसे सेमेस्टर में एग्जाम आता है ना क्वेश्चन, उस तरह से सॉल्व करके दे दूंगा। तुम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरा लेंदी पढ़ने की। तो अभी तुम सब करते रहो लेकिन मेहनत। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने इस केस के फैक्ट को डिस्कस कर दिया था कि इस केस का सिंपल फैक्ट यही था कि इंडिया टुडे में एक मैगजीन पब्लिश हुई, और पब केस आर्टिकल का नाम ही था ए रेड लाइट ट्रैप सोसाइटी गिव्स नो चांस टू प्रोस्टिट्यूट ऑफ स्प्रिंग। अब इस तरह के आर्टिकल जब पब्लिश हुआ तो इन्होंने आर्टिकल को पढ़ा, पढ़ने के बाद केस फाइल कर दिया। और इनकी डिमांड थी कि सेपरेट स्कूल बच्चों के लिए होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट के बच्चों के लिए। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, सेपरेट स्कूल अगर आप करेंगे तो प्रोस्टिट्यूट बच्चों की ब्रांडिंग हो जाएगी, और उनको हम जस्टिस देने के बजाय हम उनको इनजस्टिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि ठीक है कि आपने जो इशू रेज किया है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसलिए हमें इस पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो भी कोई एलियन नहीं है, वो भी हमारे ही सोसाइटी से हैं, वो भी हमारे और आपके घर से ही हैं। तो दे शुड बी ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग, दे शुड बी ट्रीटेड एज ए विक्टिम, दे शुड बी ट्रीटेड एज ए entitled for fundamental rights, and they are part of the citizens. They should also entitled for the justice, whatever justice, either social, political, or economic justice, or equality, either equality of status or opportunity. It means every fundamental rights and available to the prostitutes also, because for all the prostitutes are women, but all the women are not prostitutes. It means prostitutes must also be treated as a woman. After the introduction, BC Mahajan committee was constituted and that committee submitted its report, and that report was very lengthy, perfect, and enthusiastic. That was really very nice. And the Supreme Court said that even in the history, prostitution was going on, but all even in the history, everywhere women's and prostitutes were treated as a object. Object means what is the object? Object means a quality which can be sell and purchase. That is the object. That is the good. And it was unfortunate with the women. And as you know that remedy region of the prostitutions, yesterday I discussed maximum girls who belongs to the poverty. First region is that poverty, second region is illiteracy, third region is coercive, and the fourth region is care of social stigma. And Honorable Supreme Court said that in these points, these are come under the category of compulsion. There is something compulsion, but last and fifth point is that this is kind of voluntariness. Here, voluntarily means it means whatever you are going to enter in the prostitution, you are going to enjoy your life with luxurious style. The court said that this is the new trend, recent trend, and this trend is very bad for the society. It means all these regions can be divided into two parts. First part that is the voluntarily or something problem, and the second part is that luxurious life or that is the voluntarily. And the court said that normally 16 to 19 years, maximum age near about 35 years. Problem of children, there are these problems can be categorized into three parts. First part is that regarding the father, if father is not, even in the normal life you have to face several problems. एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम अपने गांव में 3-4 बच्चे साथ में पढ़ते थे, वो सब छोटे ही छोटे थे। मतलब मैं एलएलबी में था तो सब 8वीं 9वीं में था। तो 3 बच्चों के साथ में पढ़ता था, उसमें से जो लास्ट एक बच्चा था उसके फादर का डेथ हो गया था, मतलब कि शुरू में 3-4
महीने का है, 5 महीने का, 1 आध साल का रहा होगा, डेथ हो गया। मैं देखा कि जो बाकी बच्चों का ग्रोथ था और उसका ग्रोथ बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट था। क्योंकि इसका मेन हमेशा उसके दिमाग में था ना कि जैसे कि उसके भाई थे, मतलब पूरी तरह से फादर के बिना आप नॉर्मल लाइफ भी सरवाइव नहीं कर सकते, नॉर्मल लाइफ भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको एक अलग ही डिफरेंट हार्डशिप रहता है। अब सोचिए कि प्रोस्टिट्यूट के मामले में, जहाँ की एक तो फादर नहीं है, दूसरे सोसाइटी का हमेशा हमें वो करना है, सोसाइटी को फेस करना है, बहुत सारी चीजें, और फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। मतलब प्रोस्टिट्यूट के कंडीशन का सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो पहला तो फादर का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है, ये दूसरा पार्ट है। इकोनॉमिक हार्डशिप में पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि मदर के ऊपर जो भी बर्डन होगा, और इकोनॉमिक हार्डशिप रहेगी तो आपको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहेगा, बेसिक नीड आपको नहीं मिलेगा, सोसाइटी भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। सोसाइटी में देखा हूँ कि जिसके पास मनी है उसी के पास सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट है। एक मैं यहाँ पर और एग्जांपल लेना चाहूंगा, हमारे गांव के जस्ट बगल में दलित बस्ती है, SC ST रहते हैं। तो मैं देखा कि हमारे जस्ट घर के पीछे भी 3 4 ब्राह्मणों का भी घर है। तो मैं देखा कि हमारे यहाँ का कोई भी ब्राह्मण उस दलित बस्ती में पूजा पाठ कराने नहीं जाता, सिवाय एक व्यक्ति के यहाँ। एक व्यक्ति के यहाँ वो फैमिली बहुत ही रिच है। समझिए कि हमारे गांव में चाहे आप OBC हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो भी हो, शाम के यहाँ उस दलित के यहाँ पूरी तरह से जबरदस्त पार्टी होती है, और कोई छुआछूत नहीं होता है। उसके शादी ब्याह में सब लोग अटेंड करते हैं, XYZ। लेकिन जस्ट उसके घर के बगल में ही बाकी दलित हैं, उनके यहाँ न कोई खाना पसंद करता है, न उनके साथ कोई बैठना पसंद करता है। मतलब दिस मैटर इज, माई पॉइंट इज दैट इफ योर कंडीशन, इकोनॉमिकली कंडीशन यू आर स्ट्रांग, इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज ए निगेटिव पॉइंट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि फादर नहीं है, इकोनॉमिक हार्डशिप नहीं है, बेसिक नीड नहीं है, और जब मनी नहीं है तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं है, बाकी चीजें भी है, माल न्यूट्रिशन भी है। और हमने लास्ट में कहा था कि इवन ही वॉज इनोसेंट, ए ऑफ स्प्रिंग डजेंट नो हु इज माई फादर, व्हाट इज हिज रॉन्ग। उस बच्चे की क्या गलती है जो उस मदर से वो होता है और जन्म लेता है। तो इवन ही देयर इज नो फॉल्ट ऑफ दैट बेबी, बट ही हैव टू फेस होल लाइफ ड्यू टू द सच टाइप प्रॉब्लम, and maximum problem is 65.5%. I have already told you that. Court said that every woman, every person must be treated as a human, and human rights should be available for all. And our constitutions, in the preamble, we have already discussed citizens. Everything is available for all citizens. It means socio-economic justice for all, including prostitutes, liberty, equality, whatever is that for all. Our preamble also do not discriminate on the basis of religion, race, caste, race, poor, backward, nothing. Our preamble says that everyone is equal. The part and other part 3, part 4, I have already discussed. Article 14, 15, 16, 21, 23, 24, like that. DPSP I have already discussed is that, एक मिनट होल्ड करना तो। हेलो सर, हम हाँ भाई सर जल्दी बोलिए। हाँ मुरारी भैया नमस्कार, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। हाँ दिग्विजय, ऐसा ना कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो बाद में कॉल करना। अच्छा ठीक ठीक। ठीक ठीक। DPSP Article 38, 39, 45, 46 like this. Fundamental duties I have already discussed. UDHR I have already discussed earlier something, and these were some conventions. At that time I was discussing here, and at that time I was knowing what are the method, how to control or eliminate, how to control or eliminate prostitutions. There were three methods. फर्स्ट इज द काउंसलिंग, सेकेंड इज द कैजुअलिंग, थर्ड इज द कोयर्सन। और कल मैंने आपसे कैजुअलिंग का स्पेलिंग पूछा था, आप मुझे बताए थे, और यही शायद क्लास कल खत्म हुआ था। तो कैजुअलिंग का मतलब यही है कि जैसा कि आप लोगों ने बताया, हम तो देख नहीं पाए। थ्री मेथड है। पहला मेथड है काउंसलिंग, आप उसको काउंसलिंग करने का, समझाने का प्रयास कीजिए। जब नहीं समझ पाती है तो कैजुअलिंग करने का प्रयास करिए, थोड़ा बहुत लालच देने का प्रयास करिए कि हाँ मतलब यहाँ पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तुम लोग देख लोगे। और थर्ड मेथड है कोयर्सन। कोयर्सन का हमने कल आपको एग्जांपल भी बता दिया था कि अगर
प्रोस्टिट्यूशन अगर कोई नहीं प्रोहिबिट गवर्नमेंट कर रही है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो आप पुलिस अथॉरिटी या सोशल वर्कर जो भी हैं फोर्स यूज कर सकते हैं। तो दीज आर थ्री मेथड एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यूज द वर्ड ट्रिपल सी, यूज द वर्ड ट्रिपल सी। देखिए वर्डिंग के मामले में तो हम थोड़ा सा जो भी हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी की तरह वर्डिंग का जो कोहेरेंस होता है कोई यूज नहीं करता है। उनके स्पीच में देखिएगा एक ही वर्ड अगर जे से शुरू हो रहा है या अ से शुरू हो रहा है, या हिंदी हो चाहे इंग्लिश का हो, एक ही सेंटेंस मतलब इतना कोहेरेंस रहता है कि गजब का कॉम्बिनेशन रहता है। अब जैसे भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे आपने वर्डिंग देखा, जैसे कोरोना का उन्होंने निकाल दिया कि कोई रोड पर ना निकले, मतलब कितना सिस्टमेटिक, क्या वो पब्लिक से लेकर के करते हुए जैसे भी हो, तो बहुत ही अच्छा फॉलो करते हैं। तो उसमें से हम यहाँ पर भी अगर आते हैं तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, ट्रिपल सी यूज किया है। देखिए मैं याद करने के लिए भी, मैं भी जब आपको टीचिंग करता हूँ तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि कोडिफाई वर्ड यूज करके करिए। जैसे मैं टेकिंग आपको यूज कराता था, किडनैपिंग में टी यूज करिए, टेकिंग और इंटरेस्टिंग एनी पर्सन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल सी। यहाँ तक क्लास खत्म, आज से शुरू करेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड। जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं, तो देखिए जब हम आपको विशाल जीत का केस डिस्कस कर रहे थे, तो विशाल जीत के केस में ऑनरेबल जस्टिस ने एक केस कोट किया था। उस केस का नाम था लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने कोट किया था कि चिल्ड्रेन्स आर सुप्रीमली इम्पोर्टेंट नेशनल assets, नेशनल assets। बट देखिए वी आर emphasizing that children are like national assets, they are not national assets। अदरवाइज अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह से नेशनल एसेट्स की बिक्री हो रही है, आप बच्चों को भी बेच देंगे। तो माय पॉइंट इज दैट दे आर ट्रीटेड एज ए नेशनल एसेट्स। इट मीन्स देयर इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस विदाउट compromising। मतलब टुडे हु इज ए टुडे सन, to tomorrow he will be father। It means tomorrow, what is the difference between son and father? Father means a person who bears the responsibility। तो बाकी अब डिफरेंस नहीं बताऊंगा, बाकी तुम लोग समझ गए होगे। दूसरे क्लास में ऑब्जेक्शन भी तुम सब कर देते हो। दैट इज द अनदर पॉइंट इज दैट, माय पॉइंट इज दिस। क्या कर रहा है? अच्छा, so that point, my point is that even in the Vishaljit case, importance of the child was discussed. Even in the Lakshmikant case, Justice Bhagwati discussed the importance of the children, and even in this case, Honorable Supreme Court discussed the importance of the children. These are the importance of the children. Simple thing is that if children are future like this, you can read. There is no need to uh, discuss here again. Main point is the guidelines and directions. These are the important points. Whatever I have discussed, that is the only for the theory knowledge, for writing the articles, all these things. But in your semester exam, wow, main question is that what are the guidelines or directions laid down in the Gaurav Jain case and Vishaljit case. The most important point is that what are the guidelines. These guidelines you have to read and remember and write in the semester exam. So I have divided the guidelines into three parts, and these are the three parts: first, second, and third. Regarding the before going to this point, these guidelines were issued. Why? For the protection of prostitutes and their offsprings। अब देखिए आप स्प्रिंग में मैं यस लगा रखा हूँ, तो ये प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं होता है, मैं अभी डिक्शनरी चेक किया एक बार, तो आप स्प्रिंग में यस नहीं लगाएंगे तो भी प्लूरल को डिनोट करेगा, और यस लगा देंगे तो भी प्लूरल को डिनोट करेगा। तो आप स्प्रिंग सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो हमने तो लेमैन की भाषा में यस लगा दिया कि ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मतलब ये हुआ कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड देयर ऑफ स्प्रिंग्स। एक बात तो मैं तुम लोगों की तारीफ जरूर करूंगा, तुम हमारा इंग्लिश का इतना इम्प्रूव करा देते हो, इतना करेक्शन कराते हो कि मतलब गजब का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हमारी मदद करोगे तो थैंक्स तो करना बनता है ये। वैसे मैं बहुत स्वार्थी काम निकालता हूँ, तारीफ मार देता हूँ, काम निकाल लेता हूँ ना। नहीं यार ऐसा नहीं है।
अभी क्या है ना, तुम लोग देखोगे ना कि कैसे सामने देखते देखते 2 साल में आदमी नोट से किताब बन जाती है। तो तुम लोग भी तो बड़े हो जाओगे। अभी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग भी बड़े हो जाओगे, तुम लोग भी किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कहीं जज रहोगे। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो वर्कलोड जब सामने देखोगे कि सामने वाला आदमी कर सकता है, और उसमें एक और चीज तुम्हें सीखने का चाहिए कि पढ़ने लिखने का कोई उम्र नहीं होता है। हार्ड वर्क जब चाहोगे तभी तुम कर सकते हो, हार्ड वर्क करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, फिलासफी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा था कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड देयर ऑफ स्प्रिंग्स, these were the guidelines related to this point. But most important point, Article 142 is a very important. Uh, this is not directly related to this, but I wanted to discuss this article. Why? Because in this case, what happened? As you know that Honorable Advocate Mr. Gaurav Jain filed a case in 1988-1989. Near about this year, he filed case in 1989, and that judgment was delivered in 1997. It means just after 8 years, judgment was delivered. What happened at the last moment? At the last moment, other party on behalf of the state started to argue that Honorable Supreme Court should not pass directions or guidelines on this point. Question was that why and how. It was argued that single bench, single bench should avoid to pass such order and direction. Single bench should avoid, and it was argued that this matter should be referred to the larger bench. Larger bench means division bench, full bench, constitutional bench. These points have been discussed. Larger bench. But Honorable Justice said that no, no, no. I am not going to send the matter to the larger bench. Why? There were two reasons. First reason was that under Article 142, Supreme Court of India is authorized to do complete justice. It means even a single judge is authorized to pass order or direction to do complete justice. It doesn't require that only two or more or three, five judges can stand like this. No. He said that under Article 142, I have power, even a single judge can use the power and issue the direction for the protection of the, for doing the complete justice. Second point was that he said that delay defeats justice. Delay defeats justice. According to him, case was filed in 1989, and I am going to deliver judgment in 1997. There is already huge delay that is near about 8 years. It means per second we are unable to protect the fundamental rights of the prostitutes. It means if I am going to refer the matter to the higher bench will also take some more time. For example, I am giving example. For example, 7 year, 8 year, 5 year, 2 year, whatever might be that. According to him, just delay defeats justice. In such cases, we should pass an order immediate, and we should not make much more delay. In your judgment, this point have been discussed at the last two or three paragraphs. If you read this judgment on the last one or last two three paragraphs, you can read the point. So that's why this was the philosophy. Come to the point here. Court said that what are the methods? What guidelines? These guidelines can be divided into three parts. These guidelines can be divided into three parts. First part was the NGO. Second part was CDCC, Child Development and Care Centers. Third was Advisory and Monitoring Committee. Regarding these two parts, regarding these two parts, first times it was directed to establish. First time it was directed to establish. Regarding the NGO were already working. It was suggested that to make coordination among all the NGOs. With the help of NGO, Child Development and Care Centers, Advisory and Monitoring Committee, we can get
desired result. All these body will be constituted central, state, local level. I will discuss later on. This chart is not complete. Here I will add something more. 3 points I will add also here. Central level, state level, and local level. I will discuss later on. Come to the first of all. Today I will discuss only 2 points. Today I will discuss the NGO and child development care and parents. Today I will discuss. In the next class, I will discuss the advisory and monetary committee, and in the next class, I will complete this case. What was the point regarding the NGO? Honorable Supreme Court in this case said that तुम लोग को वॉइस नहीं आ रही है कहीं से कुछ ठोकने पीटने की? हेलो, आ रही है सर। रुको सर थोड़ी बहुत आ रही है सर, पर इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। माइनर से काम चल जाएगा? हाँ सर चल जाएगा सर। दीदी खेल रहे, खेलने दीजिए सर। अरे नहीं, वो बच्चे खेलने ठोक रहा है सर। ठोकने का ही अंग्रेजी क्या होता है वो भी सीखना पड़ेगा। अच्छा है कि तुम लोग अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किए हो। एवरीवन इज गेटिंग हिंदी? पूछूंगा नहीं यार, तुम बोल ही देगा। बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंट सर। देखो हम भी क्या है ना, अंग्रेजी में तो पढ़ा ही सकते हैं, जब सैलरी गवर्नमेंट दे रही है तो कुछ तो बोलूंगा ही, लेकिन हिंदी में पढ़ाने में रिलैक्स रहता है। लगता है कि जो बोल रहा हूँ मजा आता है सर। हाँ, मजा लेने के लिए क्लास ले रहा हूँ, सीखने के लिए ले रहा हूँ। 2 in 1। ठीक, एंजॉय करो, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। Role of the NGO and the need of coordination between government agencies. Point was that in this case, Honorable Supreme Court highly appreciated work of the NGO. Honorable Supreme Court highly appreciated work of the NGO. एक बार बताएं, NGO में सच्चाई ये है कि 10% NGO बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि लोग LLB पास करके इधर उधर करके अपना NGO खोल ले रहे हैं। उनको तो लगता है कि NGO का मतलब होता है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू डू सर्विस विदाउट एनी रेम्यूनरेशन लाइक दिस। लेकिन NGO में क्या होता है कि उनको पैसा बहुत ज्यादा आता है और कई NGO में करप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात ना? इसीलिए आप देखे होंगे कि जब ऑनरेबल मोदी जी जब सरकार में आए थे तो ऐसे कई फ्रॉड NGO को वो कर दिया गया था, वो ब्लैक लिस्ट करके हटा दिया गया था। क्योंकि NGO जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ, मान लीजिए कि एक तमिलनाडु का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे एक वो एस्टेब्लिश किया जा रहा था, वो था एटॉमिक एनर्जी जो होता है ना, जो भी हो, बिजली उत्पादन करने के लिए एटम यूज किया जाता है ना, तो समझ गए ना तुम सब? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसका कई सालों से विरोध चल रहा था। उसमें ये पाया गया कि NGO बहुत सालों से उसका विरोध कर रहे थे, तो कई NGO को ये पाया गया कि वो फॉरेन से पैसा लेकर के उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि हम कोई एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका से, तो चाइना या अमेरिका रशिया वाले क्या करेंगे, उसको फंडिंग करेंगे, NGO को विरोध करेंगे। तो कुछ NGO, हमें सारे NGO को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का भी इसमें काम चलता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने NGO की बहुत ही तारीफ किया, कहा कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है, और लेकिन कहा कि बेटर रिजल्ट दे सकते हैं ये NGO जो है, और भी बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कर ले। देखो लिखा हो ना, सुप्रीम कोर्ट अप्लाउडेड वर्क ऑफ NGO इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन। अगर इनके बीच में वो कर लिया जाए, एक मतलब कि कॉम्बिनेशन कर लिया जाए, कोऑर्डिनेशन कर लिया जाए, तो सारे NGO जब मिल करके काम करेंगे तो रिजल्ट जल्दी से मिलेगा। तो इसमें तारीफ भी किया गया था, तो कहा गया था कि NGO को प्रमोट भी किया जाए और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए। इससे ज्यादा इनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें जो डिस्कस करना है, सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर सेंटर CDC। आई हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट। एक बात और बता दूं, एग्जाम में यही लिखना है मेनली पॉइंट। NGO का रोल लिखना है, CDC लिखना है, एडवाइजरी कमेटी लिखना है। बाकी जितना बताया हूँ, चाहे वो महाजन कमेटी की रिपोर्ट में किया हूँ, चाहे चाइल्ड का इम्पोर्टेंस किया हूँ, चाहे चिल्ड्रेन को हार्डशिप क्या होती है, पुअर्टी क्या होती है, 66% क्या होता है, सब कुछ एक इंट्रोडक्शन के ही काम आएगा। या जब आर्टिकल तुम लिखोगे किसी न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, मैगजीन में छपवाने के लिए, वहां काम आएगा।
तुम्हारे सेमेस्टर के लिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक गाइडलाइन एंड डायरेक्शन, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमसे पढ़ लेना सारा, ये मत करना। सेकंड पॉइंट आ जाओ। इन दिस केस कोर्ट सेड दैट देयर मस्ट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर centers. Child development and care centers. It was suggested to establish. It was going to be established first times. क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्शन आ रहा था कि आप इस तरह से यूटिलाइज करो। In that point was that where it should be established. First point the situation of CDC. Establish तो करना है। क्या इनको हम कन्नाट प्लेस पे इस्टेब्लिश कर दें, या इनको पार्लियामेंट हाउस के बगल में इस्टेब्लिश कर दें, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में इस्टेब्लिश कर दें? नहीं, इनको हमें रेड लाइट में इस्टेब्लिश करना है। विसिनिटी ऑफ द रेड लाइट एरियाज, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का सेंटर है वहां पर इसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। मान लीजिए दिल्ली में कई सेंटर हैं तो वहां पर इस्टेब्लिश करिए। कोलकाता में कई सेंटर हैं, उसमें सोनागाछी भी बहुत पॉपुलर है, तो वहां पर आप इस तरह के सेंटर इस्टेब्लिश करिए। हर सिटी में हर जगह आपको इस तरह के सेंटर इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह कम वेस्ट चलते ही रहता है। विसिनिटी ऑफ द रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया की विसिनिटी में। सेकेंड एरिया, विसिनिटी ऑफ अदर एरियाज आइडेंटिफाइड एज हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। जैसे मान लीजिए कि जहाँ रेड लाइट एरिया तो नहीं है, रेड लाइट एरिया नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि वर्किंग प्लेस अलग है, रेजिडेंशियल प्लेस अलग है, तो पहले के हिसाब से वर्किंग प्लेस पर इस्टेब्लिश करना है, पहले के हिसाब से वर्किंग प्लेस पर करना है, और दूसरे के हिसाब से रेजिडेंशियल प्लेस पर इस्टेब्लिश करना है। ठीक ना? तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट अब कहाँ इस्टेब्लिश होना चाहिए? द कंसंट्रेशन ऑफ कम्युनिटीज, उस कम्युनिटीज के आसपास इसको मतलब कि इस्टेब्लिश करिए जहाँ ट्रेडिशनल, मतलब एमांग हूँ, प्रोस्टिट्यूशन इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, जहाँ पे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की तरह काम चल रहा हो। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए देवदासी सिस्टम है, जोगी सिस्टम है, तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे कि अब तो मान लीजिए संख्या खत्म हो गई है, खत्म क्या एकदम में खत्म हो गई है। तो पहले क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, जैसे लोग चढ़ावा देते थे ना, जैसे मान लीजिए कि अब वैष्णो देवी का हो गया, फलाना इस तरह का हो गया, तो पहले के सिस्टम में क्या होता था, लड़कियों को उस तरह से चढ़ावे के रूप में दे देते थे सब, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो कह रहा है कि उस कम्युनिटी के पास इस्टेब्लिश करिए जहाँ पे इस तरह का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कंटिन्यू हो रहा हो, मतलब साल दर साल कंटिन्यू चल रहा हो। तो होता है ना कि इस तरह के बाद 3 जगह का आपको इस्टेब्लिश करना हो, रेड लाइट में, या अदर एरियाज हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, or any other area where traditional occupations of women and girl is going on. So these area, it means there is no need to establish near to the university, no need to establish near to the Kannad place, no need to establish near to the Parliament House like this. You have to establish near to GB Road. You have to establish like these points. A funding and running authority. As you know that without money nothing is possible. Without money nothing is possible. एक है ना कि चलो बहुत हो गया। Funding is mandatory. So who will give funding? It was said that these centers will be run by the whom? Advisory central, state and local level. It means who will fund these centers? Central government, if it is established by center, state governments, if it is established by under supervision of state, and local level. Local level means urban bodies, rural bodies. So these are, they will fund. Who will regulate? From where manpower will come? It said that voluntarily organization will run. Voluntarily organization means it will be run under the supervision and guidance of NGO. It means in these centers, government is not going to appoint government officers. These are the funding and running authority. It means location, that is the funding, other is the running authority. Next point is that objective. With what objective CDC will be established? As you know that everyone has own objective. Everyone has own objective. Everyone has own target. टारगेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक दुर्भाग्य भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए,
स्टूडेंट्स क्या करता है कि फाइनल ईयर में पहुंच जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हम एडवोकेट बनने के लिए आए थे कि जज बनने के लिए आए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आए, उसको पता ही नहीं चलता है। जो टेप मिल रही है वहीं बैठ कर भी चल दे रहा है। ऐसे नहीं होगा, जाना होगा बनारस चले जाओगे अहमदाबाद। फर्स्ट थिंग इज दैट देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। if there is no any objective, there is a very few chance to get the success. So first of all, objective, target. So what is the objective? Why this CDC should be established? What is the purpose to establish this CDC? First purpose is that to provide welfare and development services. Welfare and development services. What is the meaning of welfare services? What is the meaning of development services? I will discuss later on. For the example, you can say the nutrition system providing the food that is come under the category of welfare services, and development services, for the example, giving the education, giving the vocational, giving the professional education. These come under the category of development. It means welfare and development services. The first objective of the CDC is that to provide development and welfare services. एक बात और बताता हूँ कि जब तुम लोग को याद करना होगा ना, तो बहुत याद करने का एक ही तरीका है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बार आंख बंद करना, आंख बंद करने के बाद एक प्रोस्यूट के बारे में सोचना जिसका कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब था, जिसका कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो एक इस तरह के मैटर में फंस करके बेचारी एक करियर खत्म होता है और इस तरह के दलदल में, इस तरह की बुरी परिस्थिति में फंस जाती है और बाद में माँ बन जाती है। अब माँ बनने के बाद अपने बच्चे को चाहती है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी बना दे, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, इस तरह का आदमी बनाना चाहती है। अब उस माँ के ड्रीम को ध्यान में रख करके और उस बच्चे को ध्यान में रख करके क्या क्या उस बच्चे के लिए चाहिए, क्या क्या उस बच्चे के लिए चाहिए, क्या क्या माँ के लिए चाहिए, तो बस तुम्हें जो समझ में आएगा वहीं लिख देना, वहीं डायरेक्शन है, वहीं गाइडलाइन है, और कुछ भी नहीं है। और इससे अच्छा याद करने का तरीका तुम कर भी है भी नहीं, और याद भी नहीं कर पाओगे। आगे पढ़ाऊंगा उसी तरह, तुम सोचना है, बस रटना नहीं है। पहला काम है कि ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस देंगे। ट्राई टू विन देम अवे। ट्राई टू विन अवे देने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोस्टिट्यूट एरिया में जो बच्चा रह रहा है, तो आप उसको प्रयास करना है कि उस रेजिडेंशियल एरिया से, उस प्रोस्टिट्यूशन एरिया से निकाल करके एक शांत वातावरण में उसको आप रखिए उस बच्चे को, ताकि अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा देखेगा, अच्छा सीखेगा। तो मैं इस तरह का देखता हूँ कि बच्चा जिस सर्कमस्टांसेस में रहता है, फैमिली का जैसा एनवायरनमेंट रहता है, वैसा ही वो सीख जाता है ऑटोमेटिक। इसीलिए अगर बच्चा प्रोस्टिट्यूट का काम माँ करती है और बच्चा उसी के साथ दिन रात रहता है, तो बच्चे में वो टेंडेंसी आ जाएगी और फिर बच्चा भी उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रह जाएगा। इसीलिए बच्चे को क्या जरूरत है कि उस तरह के एरिया से निकाल करके आप एक सेपरेट एरिया में रखिए, और जो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर भी रखना हो, जो भी सुटेबल प्लेस है, तो वहां रखिए। तो आप इस तरह का। दूसरा कैटेगरी है टू रीच आउट द मदर्स। रीच आउट द मदर्स का मतलब ये रखना है आपको कि एंड काउंसल देम डिफरेंट इशू रिलेटेड टू पर्सनल। उस माँ को भी आपको कन्विंस करना है। रीच आउट टू मदर्स मतलब माँ को कन्विंस करना है कि तुम अपना बेटर लाइफ कैसे जी सकती हो, वो पर्सनल लाइफ कैसे जी सकती है, अपना प्रोफेशनल लाइफ कैसे जी सकती है, और उसके साथ साथ अपने बच्चे का ध्यान कैसे रख सकती है। तो मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट हमारे हो गए सी के, सी मतलब चिल्ड्रेन के। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये तुम्हारे मदर के हो गए। और लास्ट पॉइंट है कि कॉन्शियस अबाउट पार्टिकुलरली फॉर द हायर एज ग्रुप, जो आपका कंसंट्रेशन होगा, जो एक जो कमेटी जो बन रही है, सीडीसी जो आ रही है, उसको आपको इस पॉइंट को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को बढ़ा, मतलब फैलाना। जैसे डिसेमिनेशन का वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड सेडिशन के ही मामले में आता है। तो डिसेमिनेट करने का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, एक दूसरे को कन्वे करना। तो कह रहा है कि ये तो आप बच्चे को सर्विस देंगे, केयर करेंगे और रेजिडेंशियल से बाहर निकाल देंगे। सी बच्चे के लिए रिगार्डिंग करना है। माँ के लिए क्या करना है कि उसको समझाना बुझाना है, ताकि वो पर्सनल, प्रोफेशनल और अपने बच्चे का केयर कर सके। और चौथा काम है आपका अवेयरनेस क्रिएट करना। ये जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब ये होगा कि इंफॉर्मेशन को वो करना है आपको, मतलब कि
फैलाना है, बताना है, समझाना है, और स्पेशली 12 से 18 साल के बच्चियों को, क्योंकि इनमें सीखने समझने और इनको वापस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए कि 20-25 साल में से वो अगर 20-25 साल की लड़की हो गई, 7-8 साल से प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, तो उसके रिटर्न होने का चांस बहुत ही कम है, वो रिटर्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमसीडी बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं। एमसीडी का मतलब हो सकता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का मतलब ये हुआ कि तुम फर्स्ट पॉइंट पर इसको रख लेना। ऐसा कहीं भी तुम रख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट पर इस पॉइंट पे रख लेना, और सेकेंड पॉइंट पे सी रख लेना। सी का मतलब हो गया चिल्ड्रेन के रिगार्डिंग रख लेना। और थर्ड पॉइंट पर ये रख लेना कि इसको इंफॉर्मेशन को कैसे डिसमिनेट करना है, ये थर्ड पॉइंट पर होगा। अब मैं जो नोट्स बनाऊंगा ना, अब जो भी मैं करेक्शन करूंगा, पार्ट नोट डाउन कर लेना। मैं इसकी लाइनिंग को चेंज कर दूंगा और यहाँ पे इसको ब्रीफ में करके एमसीडी बना दूंगा। एमसीडी मतलब एमसीडी बनाते ही तुम याद कर लो कि मदर के रिगार्डिंग क्या करना है, चिल्ड्रेन के रिगार्डिंग क्या करना है, और इसके रिगार्डिंग क्या करना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो हो गया। अब आएगा प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज। जैसे अभी मैं बता रहा था कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, कि प्रोवाइड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस आपको देना है। पहला ऑब्जेक्टिव था ना? हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव यही था, सर्विस देना है। अब किस तरह का आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अब इस पे बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है। प्रोवाइडिंग आप सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति को कितना बार समझा लीजिए, अब उसे खाने पीने का व्यवस्था ही नहीं है या कुछ करियर ही नहीं है, तो ध्यान देगा? नहीं ध्यान देगा। जैसे एक बात मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा, तुम लोग भी सुन लो। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध बहुत ही अच्छा उपदेश दे रहे थे। तो महात्मा बुद्ध, उनको धीरे धीरे विश्वास हो गया था कि बहुत ही हम अच्छा उपदेश देते हैं। एक बार क्या हुआ कि पब्लिक बहुत ज्यादा बैठी थी और बहुत अच्छा उपदेश दे भी रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उसी बीच में से एक आदमी उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब उसका सुनने में उसका मन लग ही नहीं रहा था। तो महात्मा बुद्ध जी देखे तो उनको थोड़ा सा वो अजीब लगा। उन्होंने उसको बुलाया, कहा सुनो। वो गया तो बोले कि ये बताओ कि तुम खाना खा करके आए हो? तो बोला कि नहीं सर, खाना खा करके नहीं आया, भूख मुझे बहुत लगी है। तो वो बोले कि ठीक है। बाकी लोगों को बुलाकर बोले कि इसको ले जाकर खाना खिला दो। अब वो आया तो खाना खा करके बैठा तो पूरा लेक्चर सुना। उनका कहने का मतलब ये था कि आदमी जो रेगुलेट होता है ना, भूख से रेगुलेट होता है। उसकी पहली डायर नीड जो है भूख है। तो गरीब आदमी भूखे जब मरेगा तो कुछ भी करेगा। गरीब आदमी तो इसी बात को लेकर के था। अगर आप फिलासफी बहुत दे दो कि तुम्हें हम यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, तुम्हें यहाँ नरक है, ये है, वो है, तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वो नहीं कन्विंस होगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, उसको प्रोवाइड कराओगे, ये मैं दूंगा, या ये सामान ले लो, ऐसा ऐसा मैं करूंगा, एक फ्यूचर के साथ रहेगा, तो रिटर्न कर जाएगी। तो मतलब हमारे है कि सिर्फ लेक्चर दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे जनता खुश नहीं होगी। कभी कभार रिवर्स कर जाती है जनता। तो इस तरह का तो फैसिलिटी क्या क्या देना, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको हम क्रैश बोलते हैं। आज मैं इसको सीखा हूँ, पहले तो मैं इसको क्रैश बोलता था, लेकिन आज देख रहा था डिक्शनरी में तो इसको क्रैश बोलते हैं। क्रैश का मतलब क्या होता है कि डे एंड नाइट टाइम में बच्चे को रखना होता है। इसका डायरेक्शन था डे एंड नाइट टाइम में। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रैश है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्रैश है। आप अगर एम्प्लॉय हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप अपने बच्चे को क्रैश में रख सकते हैं। जैसे क्या होता था कि एक समय आया जब मेरी वाइफ ने भी जिद किया कि मैं भी लाइब्रेरी चलूंगी। तो मेरी वाइफ भी जब सेंट्रल लाइब्रेरी आने लगी तो मुझे बच्चे को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। तो हम लोग क्या करते थे कि बच्चे को लेकर के आते थे और शाम मतलब बच्चे को क्रेश में रख देते थे, और हम आपके यहाँ पढ़ाने आते थे, वाइफ पढ़ने चली जाती थी। लेकिन क्रेश, वहां का जो क्रेश था, उसका टाइमिंग था सुबह 8 से लेकर के शाम 5 बजे तक। मैक्सिमम क्रेश का टाइमिंग यही होता है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे स्पेशल बात कहा है कि सिर्फ डे में ही नहीं, नाइट में भी उनकी व्यवस्था करनी है आपको। मतलब ऐसा हो कि मान लीजिए कि दिन में तुम खाना पीना खिला दो, फिर तुम कह दो कि माँ को रात को लेकर के जाओ अपने जगह पे जहाँ रहती हो, तो क्या फायदा होगा बच्चे का? बच्चे का तो फिर वही हैबिट बनी रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि क्रैश का टाइमिंग होता है डे एंड नाइट, इसमें डायरेक्शन दिया गया था। वैसे क्रैश जो है ना, जैसे कि डब्ल्यू का जो महिलाओं का जो हॉस्टल है ना, उसके जस्ट बगल में ही है। क्योंकि मुझे खोजते समय बहुत टाइम लगा था, मिरांडा हाउस के जस्ट अपोजिट में ही है। तुम लोग भी कभी यूनिवर्सिटी आ जाओगे तो तुम्हारे लिए पहले ही बता देता हूँ, तुम लोगों के बारे में सोचते रहता हूँ।
ये हो गया यहाँ पर डे एंड नाइट का सिस्टम है क्रैश में। अदर बात है कि प्री स्कूल एजुकेशन। देखो एजुकेशन में क्या है, अभी अभी गवर्नमेंट ने देखा है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। उनमें एक बात और है कि प्री स्कूलिंग पर गवर्नमेंट पहली बार ध्यान देने जा रही है। प्री स्कूलिंग पर 3 साल से पहले का बच्चा होगा उसके स्कूलिंग पर भी ध्यान देने की बात चल रही है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था 14 साल का था, फिर हमने 6 साल से नीचे का कर लिया कि 6 साल से नीचे का भी करेंगे। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब ये है कि उसको स्कूल से भेजने से पहले ही उस बच्चे को ऐसे कन्विंस करना है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, सोशली रूप से डेवलप हो जाए, और मेंटली रूप से वो मतलब फिट हो जाए कि हाँ हम इसे सोसाइटी को फेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम तो घर में बहुत अच्छी तरह से पालते हैं बच्चे को, लेकिन सोसाइटी में जैसे ही बच्चा जाता है, स्कूल में जैसे ही जाता है, उसकी जो भी कमी रहती है बाकी बच्चे तुरंत उसको चिढ़ाने लगते हैं। हम लोग को ध्यान है, मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि जब हम लोग बच्चे थे तो भी हम समझ गए थे कि मतलब कि जो भी हो, इस तरह की बातें हैं कि आदमी दूसरे को ब्लेम करने लगता है। जैसे बच्चा तुरंत जान जाएगा या मान लेने जाएगी, तुरंत कहेगी उसका बच्चा वो प्रोस्टिट्यूट का है, उसका बेस्या क्या है, उसके साथ मत रहो, मारेगी पीटेगी, उसके साथ रहबे मत करो। तो अब वो बच्चा कल को उसको तुरंत दूसरे बच्चों को कह देगा कि तुम तो बेस्या के लड़के हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो जब उस बच्चे के दिमाग पर ये बात आएगी तो उस पर बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उस बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ही उसको इमोशनली, फिजिकली, सोशली, मेंटली इतना डेवलप करो कि अगर कोई कह भी दे इस तरह की बात तो बच्चा अंदर से न टूटे। इतना उसको स्ट्रांग करो, ऐसे कन्विंस करो कि उस सोसाइटी में जाकर के फेस कर सके। अदरवाइज बच्चा जो चीज घर पे नहीं जानता है कि मेरी माँ क्या करती है, वो स्कूल में जाकर के जान जाएगा। तो इस तरह की बात को प्री स्कूलिंग एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। फिर कहा गया था आफ्टर स्कूल एजुकेशन हेल्प द चिल्ड्रेन। अब कह रहा है कि मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग, जैसे कि सेपरेट स्कूल तो है नहीं, कॉमन स्कूल है। स्कूल का टाइमिंग मान लीजिए 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक का स्कूलिंग होता है। अब का स्कूलिंग तो नहीं, जब हम लोग थे तो 10 से 5 का स्कूलिंग चलता था। तो 10 से 5 तक का स्कूल है, तो 10 से 5 तक का स्कूल में टीचर 3-4 घंटा पढ़ाएगा, बच्चा घर पर आ जाएगा। तो घर पर आ जाएगा तो कौन पढ़ाएगा उसको? उसकी माँ तो प्रोस्टिट्यूट में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको लाइवलीहुड के लिए बेचारे को संघर्ष करना है, माँ को जो भी हो। तो अब उसका केयर कौन करेगा? और घर पर उसका केयर अगर नहीं होगा, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप रखें वहां केयर नहीं होगा, तो भी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ टीचर इस तरह के रखे जाएं कि उनको घर पर भी उनको गाइडेंस देते रहें। होमवर्क एंड प्रिपेयर लेसन फॉर स्कूल्स, कि वो घर घर पर भी जाकर के होमवर्क में उनको हेल्प कर सकें, ताकि कल का जो टीचर बताया कि कल लिख करके लेकर के आना है तो लिख करके वहां पे लेकर आ सके। तो पहले आपने देखा क्रैच में रखिए, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूलिंग के बारे में रखिए, प्री स्कूलिंग। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी टीचर की व्यवस्था करिए, सोसाइटी की व्यवस्था करिए, जिससे कि उस बच्चे का हेल्प हो सके। लेकिन भारत की विडंबना ये मैं बता दूं कि प्राइमरी स्कूल में 70% टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है, 60% खाली है। तो गवर्नमेंट जब नॉर्मल स्कूल के टीचर के लिए तो टीचर अपॉइंट कर ही नहीं पा रही है, और गवर्नमेंट से उम्मीद करिए कि वो ऐसा टीचर रखेगी कि कुछ टीचर दिन को पढ़ाएंगे, कुछ टीचर उसके घर पे जाकर पढ़ाएंगे। ये प्रैक्टिकली एकदम इम्पॉसिबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5,000 टीचर की सीट खाली है, 5,000 टीचर की सीट खाली है, 5-7 हजार अढ़ाक टीचर काम करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, स्टेट यूनिवर्सिटियों में टीचरों मतलब प्राइमरी में इतना टीचरों की संख्या खाली है कि नॉर्मल वे में टीचर अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं, और आप डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, और फिलॉसफी आप ऐसे दे दे रहे हैं, क्रैच में रखिए, प्री स्कूलिंग एजुकेशन दीजिए, फिर वो घर जाता है तो होमवर्क के लिए घर पर भेजिए मतलब जा करके। और इतना ही नहीं, उसके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था करिए, स्पेशल कोचिंग दीजिए आप। देखिए स्कूल में टीचर तो पढ़ाना ही नहीं चाहता, स्कूल में टीचर तो पढ़ाना ही नहीं चाहता, अब उसको आप एक स्पेशल कोचिंग आप दीजिए, ये समथिंग डिफरेंट हो जाता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, अपनी तारीफ में मारते रहता हूँ, अलग बात है। मैं चाहे पांडिचेरी में रहा हूँ चाहे बनारस में रहा हूँ, हमेशा 3 से 4 घंटा में एक्स्ट्रा पढ़ाता रहा हूँ।
ये रिकॉर्ड हो रहा है, हमेशा भी रहेगा, कभी भी आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा। 3 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा हमेशा पढ़ाते रहो। हाँ, ड्यू में आने के बाद वर्कलोड इतना रहा, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने का मौका भी नहीं मिला या जरूरत भी नहीं महसूस हुई। इसके बावजूद भी हम लोग का टेस्ट कंडक्ट कराना, बाकी चीजों एक्टिविटी रखना, कंटिन्यू हम सपोर्ट करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। क्योंकि ठीक है, तारीफ मारना जरूरी है कि तुम लोग को मालूम भी चले, ताकि जरूरत पड़ने पर कॉल कर सकूं। बाकी तो हम हैं तो है ही। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये है कि आपको स्कूल में कोचिंग देना है। चौथा पॉइंट है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फंक्शनल थ्योरी, उसको ऐसा पढ़ाओ कि ताकि उसे नौकरी बाद में पढ़ भी ना पाए तो कुछ ना कुछ जॉब कर सके। मतलब यह है कि उसका वोकेशनल ओरिएंटेशन एजुकेशन होना चाहिए। मतलब उसे कुछ काम भी सिखा दो, ये नहीं किताबें पढ़ना सिखाओ और बाद में कुछ करना ही ना सीखे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लाने जा रही है, अगर जिस फॉर्मेट में है, अगर उस फॉर्मेट में एक्सेप्ट हो गया और प्रॉपर में इम्प्लीमेंट हो गया, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसका डर इसी बात का है कि प्रॉपर रूप में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जो बच्चे 6ठी क्लास से आएंगे, आगे आएंगे, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन देना है कि फ्यूचर में अगर एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब न भी मिल पाता हो या प्राइवेट में न भी जा पाते हो, तो खुद का अपना एक जॉब क्रिएट कर सकें और अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें। ये भी यहाँ पर वही बात है, फंक्शनल लिटरेसी पर ध्यान रखना है, काउंसलिंग को ध्यान में रखना है, काउंसलिंग देते रहना है, पर्सनल के रिगार्डिंग भी कि तुम्हें कैसे पढ़ो, क्या करो, करियर की रिगार्डिंग भी हमने भी आपको काउंसलिंग दिया था, करियर एडवांसमेंट पहला एक क्लास लिया था कि करियर क्या है। फिर न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पे। अब लाइब्रेरी पे ध्यान रखना है ताकि दिन रात पढ़ सके। टॉय बैंक भी जरूरी है ताकि एक बच्चा खेल कूद सके। रिक्रिएशन भी है, स्किल डेवलपमेंट है, ये सब आप पढ़ सकते हो। अब देखो, टॉय और रिक्रिएशन का कॉम्बिनेशन कर लेना, टॉय और रिक्रिएशन का अलग कर लेना, और जो पढ़ाई लिखाई वाला प्रॉब्लम है ना, सारा एक साथ कर लेना। मतलब प्री स्कूलिंग, आफ्टर स्कूलिंग, कोचिंग, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और लाइब्रेरी एक ग्रुप में डिवाइड कर लेना। फिर इसके बाद स्किल डेवलपमेंट भी एजुकेशन में ही लेकर चले जाना। इस तरह से कैटेगरीज जब डिवाइड कर लोगे कि हमें क्रैच में रखना है, हमें स्कूल के बारे में ध्यान रखना है, हमें उसके हेल्थ पर ध्यान रखना है, ये दोनों हेल्थ का हो जाएगा, न्यूट्रिशन और हेल्थ। हमें हेल्थ पर ध्यान रखना है, हमें उसके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है, तो ये तुम आसानी से याद कर लोगे। अब बात आई फाइनेंशियल सपोर्ट टू मदर 1000 रुपीज, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब प्यारा स्कीम गवर्नमेंट उसने बताया था वो इसने। अब इसमें कहा गया था कि कई बार देखा जाता है कि मदर को फाइनेंशियल असिस्ट करने की जरूरत है। अलग बात है कि उस समय 100 रुपया ही बात किया गया था। देखो, 100 रुपया और 1 रुपया कुछ व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ व्यक्ति के लिए 100 रुपया बहुत मायने रखता है। अभी मैं देख रहा था कि कल मैं एक वीडियो शेयर किया था फेसबुक पे, वहां पे एक लड़की को जिसकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल है, अब वहां पे उसको कंपल्सन इतना है कि बेचारी को 100 रुपए के लिए वहां पे जाना पड़ता है। मतलब जहाँ माइनिंग का काम होता है, खुदाई होती है, और उस 100 रुपए की वजह में उसको 5-6 लोग रेप करते हैं, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हाँ मतलब हम जाकर कुछ और करें। यही नहीं, उस पूरे एरिया में भील कम्युनिटी है, पूरे एरिया में इस तरह की समस्या है, और लॉकडाउन के बाद वो समस्या और बढ़ गई है। तो अब सोचो कि और उसकी माँ, फैमिली, गांव सब जानता है कि हाँ ये बच्ची यहाँ जाती, ये बच्ची यहाँ जाती, सबको मालूम है, लेकिन वही कहता हूँ ना कि भूखा मरता क्या न करता। अब वो 100 रुपए के लिए उसको वहां जाना पड़ता है। तो इस तरह का, और मीडिया में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इस तरह का चर्चा ही नहीं होती है। तो वहां पे ये मुझे अच्छी स्कीम लगी। अब तुम कहोगे सर पर मंथ की बात की गई है, चलो ठीक है, 100 रुपये पर मंथ है, कोई बात नहीं है। तो इसका फायदा क्या होगा, उस समय 100 रुपये कुछ मायने रखता था। जैसे मान लीजिए कि उस समय 100 अगर हम आज के कैलकुलेट करें तो कम से कम 1000 रुपया बन जाएगा। तो 100 रुपये की गवर्नमेंट इसमें बोला कि ऐसा करना कि तुम मदर को 100 रुपये का हेल्प करना, हर महीने मदर को देना। और मदर को डायरेक्शन ये है कि मदर वो 100 रुपये अपने बच्चे को खिलाएगी, 100 रुपये में खिलाएगी। अगर माँ 100 रुपये में बच्चे को खिलाने का और व्यवस्था कर लेती है, और उस 100 रुपये को बैंक अकाउंट में डालती है, हर महीने किसमें डालती है, बैंक अकाउंट में डालती है, नेशनलाइज्ड बैंक में। अगर 100 रुपया अगर माँ डालती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, सीडीसी की तरफ से 100 रुपया और डिपॉजिट होगा। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर माँ 100 रुपया डिपॉजिट करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपया डिपॉजिट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। जब 200 एक महीने में हो जाएगा तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 दुना के 24। तो जो 24 महीने का हो जाएगा, साल भर में 24 महीने, तो 4-5 साल बाद अगर वो डिपॉजिट करती है इस तरह से, तो आगे जाकर के फ्यूचर में मनी बहुत ज्यादा निकलती है। जैसे हम लोग बताएं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक एनपीएस होता है, या हम लोगों को जो इस तरह से मिलता है, अगर हम लोग 10,000 पेड करेंगे, मतलब एनपीएस कटवाएंगे, तो गवर्नमेंट 10,000 और देगी, तो 10 गुना के 20,000 हो जाता है। अलग बात है कि 4-5 साल से हम इसका अपना कटवाए ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन ठीक है। तो इसमें यही था कि अगर 100 रुपया माँ जमा करेगी तो 100 रुपया गवर्नमेंट, 200, और बाद में इस तरह का वो हो जाएगा, बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। तो अपने एग्जाम में इस स्कीम को लिखना। अभी देखो गवर्नमेंट ने भी एक निकाला था, स्कीम निकाला था, सुकन्या समृद्धि समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में भी गवर्नमेंट इस तरह का प्लानिंग बना रखी थी कि अगर बेटी पैदा होती है और आप इतना अमाउंट डालेंगे तो हम इतना देंगे, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट दे रही थी। खैर अभी कम हो गया है, अलग बात है। तो गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम निकालती है, और इसने एक प्लान बनाया कि आप जो गवर्नमेंट 100 रुपया देगी, वो पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जाकर के खेत की जमीन खोदते हैं और उनको पैसा आ जाता है, ऐसा तो नहीं है। हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं, तभी होता है। तो थ्रिफ्ट स्कीम बनाने का प्लान बनाया है। थ्रिफ्ट स्कीम का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट काट लेगी, फिक्स अमाउंट काट लेगी, और वह अमाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने इस सब पे खर्च होगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एजुकेशनल सेस कहलाता है, एजुकेशन सेस, वो भी एक तरह का टैक्स होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना पड़ता है, शायद 2% टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोग भी अपने सैलरी का जो होता है टैक्स कई जगह से कटवाते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी पार्टिकुलर टैक्स है जिसमें कि एजुकेशन सेक्स का टैक्स, सेस का टैक्स हम लोग देते हैं। तो यही कहा गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस की जगह आप एक थ्रिफ्ट स्कीम निकालिए, और उस थ्रिफ्ट स्कीम का मतलब ये रहेगा, उससे पैसा जो आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के बच्चे पर ही खर्च होगा। और जब तुम गूगल में भी डालोगे थ्रिफ्ट स्कीम या थ्रिफ्ट प्लान स्कीम, तो सब बता देगा कि ये एक पैसा समझ गए ना, थ्रिफ्ट स्कीम। भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं जी है? सर, जी सर। हाँ, बस यही है। डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेल्थ, ये भी बहुत ही अच्छा है। देखो अभी तक हमने जितने ऊपर के डिस्कस किए हैं, नियर अबाउट 13 पॉइंट, उसमें कहीं न कहीं पैसे की कमी थी, मनी की कमी थी, मनी की कमी थी। माँ केयर नहीं कर पा रही थी, क्रैश ये सब सिस्टम में नहीं आ पा रहा था। जितने हम लोगों ने देखा था वहाँ मनी प्रॉब्लम था। लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज है, जो कि 14वां पॉइंट है, यहाँ मनी की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मनी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता रहे थे कि कई बार आप देखते हैं कि लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए भी लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए भी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उस तरह के जिसकी लग्जरियस लाइफ है और वो प्रोस्टिट्यूशन में अगर इन्वॉल्व है, तो उस तरह के मामले में तो अब बच्चा को उस तरह का अगर ले लेता है सीडीसी, उस तरह की महिला क्या करेगी? वो महिला क्या करेगी? सबसे पहला यही कहेगी कि हमारा बच्चा तुम्हारे क्रैच में नहीं रहेगा, तुम्हारे यहाँ खाने पीने ये सब 50 चीजों की वो है, और बदनामी हो जाएगी फालतू में कि जाति कहाँ पर करती क्या है कि जो इसका बच्चा क्रैच में रहता है, वहां पे रहता है, वहां पे रहता है। तो अब वो क्या करती है महिला, वो कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बच्चे को नहीं रखना है, मैं इस बच्चे को लेकर के अपने पास जाऊंगी। अब वो लेकर के जाती है। उस मामले में सीडीसी का क्या रोल होगा? जो माँ फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अपने बच्चे को सीडीसी के अंतर्गत क्रैच में नहीं रखना चाहती है, खुद अपना केयर करना चाहती है, इस मामले में सीडीसी उसको परस्यू करेगा, कंटिन्यू उसको देखता रहेगा कि जो बच्चा माँ लेकर जा रही है क्या उसका प्रॉपर केयर कर रही है, प्रॉपर केयर कर रही है, खिला रही है, पिला रही है, ठीक से कर रही है, कि अपना कहीं और बिजी है, बच्चे को इसी तरह छोड़ दे रही है। इस तरह का एक प्लानिंग था। एक मैं और बता दूं, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका डेनमार्क कंट्री का एक एग्जाम्पल होता है। वहां पे सोसाइटी बहुत एडवांस है। वहाँ नॉर्मल सोसाइटी का एक कंडीशन है कि गॉड आपका बच्चा कितना खा रहा है, कितना वजन हो गया है, स्कूल किस स्कूल जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, गवर्नमेंट हर साल हर महीने उसका चेकअप करवाती रहती है। या आप अपने बच्चे को मारते हैं पीटते हैं,
वो होता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आता है। इसीलिए भारतीय जो है, जो अमेरिका में जा चले जाते हैं, डेनमार्क में चले जाते हैं, तो भारत में क्या है, बच्चा जैसे ही रोता है 2 थप्पड़ खट से जड़ दिए। अब अमेरिका या डेनमार्क जैसे कंट्री में क्या होता है, स्वीडन में क्या होता है कि जैसे बच्चे को तुम 2 थप्पड़ मार दोगे और गवर्नमेंट को पता चल गया, तो पता चल गया तो तुम्हें जेल में भेज देगा, या तुम्हारे बच्चे को अपने यहाँ से लेकर के चला जाएगा और अपने हिसाब से रख करके पालना शुरू कर देगा। तो वो एडवांस है। तो वो जो लॉजिक है वहाँ पे, चलो तो नॉर्मल लाइफ के लिए वो बहुत ही एडवांस कंट्री वहाँ पे लागू हो रहा है, उसी लॉजिक से ये पॉइंट इंस्पायर्ड है। अगर इस तरह की कोई लेडी है, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है लेकिन बच्चे का केयर नहीं कर रही है, उस मामले में सीडीसी वो कर सकता है, मतलब कि इंटरफियर कर सकता है। अब लास्ट पॉइंट है कि फंडिंग कहाँ से आएगी। आपको स्कूल बनवाना है, टीचर बनवाना है, क्रैच रखना है, आपको फैसिलिटी देने, खाने पीने की व्यवस्था करनी, फंडिंग कहाँ से आएगी। तो फंडिंग का यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जैसे रहेगा वैसे फंडिंग इनको करेंगे। अब नोडल एजेंसी क्या होगी, सीडीसी एक नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी का मतलब होता है एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से का मतलब ये हर चीज को कंट्रोल करेगी, हर चीज को ये रेगुलेट करेगी, एनजीओ के कार्य को, बाकी अपने कार्य को। एक होता है ना, हर जगह एक नोडल एजेंसी बना दी जाती है, एक हेड क्वार्टर टाइप में काम करेगा। तो सीडीसी एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर, अब ये जो बच्चे हैं, जो सेंटर हैं, अब सेंटर देख रहे हो ना, यहाँ पे सेंटर था, सीडीसी एक सेंटर ही तो है। वो जो सेंटर है वो हमेशा फॉलो अप वुमेन, वो वुमेन को फॉलो अप करते रहेंगे, प्रोटेक्टिव होम, चिल्ड्रेन को ध्यान में रखते रहेंगे, इस तरह की चीजें वो पॉइंट रहेंगी। अब इसको थोड़ा सा एक बार और समरी में ले लेता हूँ, समझ जाओगे। कोर्ट ने कहा, गाइडलाइन हुआ, 3 गाइडलाइन है इसमें, एक एनजीओ के लिए, एक सीडीसी, एक एनजीओ के लिए सीडीसी, और एडवाइजरी मॉनिटरी कमेटी के लिए। एनजीओ की तारीफ करते हुए एडवाइस दिया कि इनके काम को सेंट्रलाइज किया जाए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सीडीसी के बारे में कहा गया था कि सीडीसी जो इस्टेब्लिश कहाँ की जाए, तो बाकी 3 एरिया में है, रेड लाइट, नियर टू दैट पॉइंट। 1 मिनट बस रुकना, चार्ज लगा देता हूँ, लगता है चार्ज। जब टाइम हो जाएगा तो बता देना। सर 15 मिनट ज्यादा हो गए सर पहले ही। हाँ तो ठीक है। आज हमारे वाइफ बच्चे का केक रख करके वेट कर रहे हैं, केक काटना है आज। अच्छा बर्थडे है सर आज? बच्चे 2 बर्थडे उसका मना देते हैं, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है, एक वो हाँ सर। सेलिब्रेट कर देते हैं, और एक आज डेट वाइज है आज। तो अच्छा क्या सर। लो भाई, खुश रहो। लड़कियों क्या है, भौकाल अच्छा लगता है, एक तो कट दिया मर खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारा बेटा है, ये प्यार करता है। नहीं ला करके दुख लगेगा कि बस फादर होने का फॉर्मेलिटी भी पूरा नहीं करता है। कई बार हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, लेकिन ठीक है, ये सब अगर कुछ करने से कोई खुश हो जाए तो कर देना चाहिए। हाँ सर। पॉइंट इज दैट, बस दोनों समराइज कर लेंगे, बस इसको खत्म कर लेंगे। सिचुएशन ऑफ सीडीसी रेड लाइट एरिया हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स हो गया, लाइक दिस फंडिंग कौन करेगा, यहाँ फंडिंग का हो गया। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एमसीडी है। एमसीडी मदर को आपको कन्विंस करना है, और बच्चे को आपको वेलफेयर डेवलपमेंट सर्विस देना है, और उसको मदर के यहाँ से हटा करके रिहेबिलिटेटिव सेंटर में रखना है। और साथ साथ में जो 12 से 18 साल की, सबको इन्फॉर्म करना है, लेकिन जो 12 से 18 साल की बच्चियां हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, और प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से 90% सेक्स वर्कर जो है एड्स से पीड़ित हैं। तो और फैसिलिटी क्या क्या देनी है, फैसिलिटी में अब अगर देंगे, बच्चों के लिए देंगे, तो पहला पॉइंट है कि उनको रखना कहाँ है। उनके जब माँ के यहाँ से लेकर के आएंगे तो रखोगे कहाँ पे, तो क्रैश इस्टेब्लिश करना होगा, और वह क्रैश डे और नाइट दोनों काम करेगा, डे एंड नाइट। फिर क्या है कि बच्चों को एजुकेशन पे उसके ध्यान रखना है। एजुकेशन पे हमें स्कूलिंग जाने से पहले, स्कूल जब जाता है तब, स्कूल से आने के बाद होमवर्क किया कि नहीं किया उसका भी ध्यान रखना है, उसको कोचिंग देना है। फिर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करना है, ताकि बच्चा स्कूल जाने से पहले लाइब्रेरी पढ़ ले। जैसे जितने भी डीओ के हॉस्टल है सारे में लाइब्रेरी है, ताकि बच्चे वहां भी पढ़ सकें। तो इस तरह की, मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल गया, स्कूल से आने के बाद होमवर्क और कोचिंग, इस सारे उसके को ध्यान में रखना है, और एक लाइब्रेरी बनवा देना है।
और एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एजुकेशन एक तो ऑक्यूपेशनल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, ताकि जा करके सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ कमा सके। फिर बच्चा जब आएगा तो दिन भर तो पढ़ेगा नहीं, वो तो पागल हो जाएगा दिन भर पढ़ेगा तो। उसके लिए हमें खेलने कूदने का व्यवस्था होना चाहिए। स्वाइप बैंक कर दो और इंजॉय करे बाकी। फिर उसका हेल्थ का भी ध्यान में रखना है, खाना पीना सब कुछ ध्यान में रखना है। फिर मदर को 100 रुपया सपोर्ट करना है। अगर मदर 100 रुपया खर्च कर देगी तो गवर्नमेंट को 100 रुपया और डिपोजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अगर मान 100 रुपया सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट भी 100 रुपया सपोर्ट करेगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि माँ जो है सेविंग की हैबिट करेगी, और फ्यूचर में जब बच्चे को पैसे की जरूरत होगी तो वह बच्चा पैसे उसको मिलेगा और अच्छा लाइफ जिएगा। अब स्कीम क्या है? गवर्नमेंट इसके लिए एक टैक्स लगा सकती है अपने एम्प्लॉय पर, तो थ्रिफ्ट स्कीम के अंतर्गत मैटर आता है। डी इंस्टीट्यूशनलाइज है। अगर माँ बहुत ही पैसे वाली है, बच्चे को ध्यान में नहीं रखती है, लेकर चली जाती है, फिर भी आपको उसको फॉलो करना है, बच्चे को केयर करना है। फंडिंग कौन देगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। सीडीसी नोडल एजेंसी है और सेंटर इसका केयर करेगा। और थर्ड जो गाइडलाइन है कल हम डिस्कस करेंगे, एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी। और याद रखना तुम सब। चलो भाई, तुम लोग भी बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और हैप्पी बर्थडे टू ह्यूमन सर। हाँ भानु, ठीक है बोल दूंगा उसको। चलो आयुष सर। सर आयुष है, भानु नहीं।